If Lord brought you here this morning, पर मेरा विश्वास है जब प्रभु आज आपको इस भवन में लेके आए हैं, God wants to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। You know, we have done worship, हमने परमेश्वर की स्तुति आराधना की which है, obviously pleases the heart of the Father. जो पिता के हृदय को अच्छा लगता है। You know, worship doesn't change heart of God, it changes our heart. वर्शिप हमारा हृदय बदलता है। You know, it doesn't change the heart of God. वो पिता के हृदय को नहीं बदलता, वो हमारा हृदय बदलता है। God's heart is always the same. He loves his children. परमेश्वर का हृदय सदा एक सा है, वो अपने बच्चों को प्रेम And this करता morning, है। I want to talk to you about the word. और मैं आज इस विषय में बात करना चाहता हूँ। 3 revelation of Jesus Christ, which is important for every believer to abide in. 3 यीशु मसीह के प्रकाशन जो हर विश्वासी को जानना और जीना अनिवार्य है। This is a foundational message if you want to live in victory. ये नींव की सिद्धांत की बातें हैं अगर आपको एक विजयी जीवन जीना है। If you don't understand Jesus in these revelations, अगर आप यीशु को इस प्रकाशन में नहीं जानते, you will never be able to enjoy Christian life. आप कभी भी मसीह जीवन को आनंद के साथ नहीं बिता पाएंगे। So today what I am teaching you is going to change your life forever. आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपका जीवन सदा के लिए बदल देगा। Are you ready for it? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? Amen. We are going to learn about Jesus Christ. आज हम यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। And then you should know about that how Jesus is different than anyone else in the world. तब आप जान पाएंगे यीशु कैसे बाकी सब से अलग है। You need to know why do you worship Jesus? आपको जानना होगा कि आप क्यों यीशु की आराधना What are करते the हैं। things that he has already done? उसने क्या क्या कर दिया है, What are the things he is doing? क्या वो कर रहे हैं, And what are the things he will do? और वो क्या करने पर हैं। We must know these 3 dimensions. हमें ये तीनों डायमेंशंस आयाम जानना जरूरी है। Because if we don't understand these dimensions, अगर हम इन तीनों आयाम को नहीं जानेंगे, we will fail हम फेल हो to जाएंगे। walk in victory. हम जय के जीवन को नहीं जी Because पाएंगे। there are things that God has accomplished for us in Christ, कुछ चीजें हैं जो प्रभु ने मसीह में पूरी कर दी हैं हमारे and there लिए, are things that he is still doing today. और कुछ है जो वो आज भी कर रहे हैं। And when we do not understand what he is doing today, और जब हम ये नहीं समझते वो आज क्या कर रहे हैं, you know, and we only live in what he has done, तो हम उसी में जीते हैं जो उन्होंने किया है। then we are not allowing him to complete us. फिर वो हमें पूरा करने के लिए हम उनको आज्ञा नहीं देते, जगह नहीं देते। There are things that he has done, कुछ चीजें जो उन्होंने कर दी हैं, there are things that he is doing, कुछ हैं जो वो कर रहे हैं, and there are things that he will be doing. और कुछ है जो वो करेंगे। Are you ready for this? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? Okay, there are 3 ministries that we need to understand of Christ. यीशु की 3 सेवकाई हैं जो हमें समझना जरूरी है। There are many things that Christ does, बहुत कुछ है जो यीशु मसीह ने किया है, but these are 3 primary ones that I want to teach you today. और ये 3 प्राथमिक हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। The first one, जो पहला है, Jesus my Savior. यीशु मेरा बचाने वाला है। What is the first one? पहला क्या है? जोर से बोलो. Jesus my Savior. यीशु जो मेरा मसीह है, Personal Savior. मेरा व्यक्तिगत मसीह है, My Deliverer. मेरा छुड़ाने वाला है, You know, someone who pays price for me. जिसने मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे दाम चुकाया So है। first revelation, Jesus my Savior. पहला जो प्रकाशन है कि यीशु बचाने वाला है। Second revelation, जो दूसरा है, Jesus my High Priest. दूसरा है जो यीशु जो मेरा महायाजक है। If I don't understand his role as a my High Priest, अगर मैं एक महायाजक के तौर पे यीशु को नहीं समझता, I will fall back into sin. मैं वापस पाप में गिर जाऊंगा, I will fall back into religion. मैं वापस धर्म में चला I will जाऊंगा, fall back into old ways of life. मैं जीवन की पुरानी पद्धतियों में फिर लौट जाऊंगा। So one role of Jesus as my Savior, एक यीशु जो बचाने वाला है, another role of Jesus as my High Priest, दूसरा जो यीशु मेरा महायाजक and है, the third role is Jesus my coming bridegroom. तीसरा यीशु जो दुल्हा है जो आने वाला है। Amen? आमीन। So these 3 roles have 3 distinct purpose in our life. ये जो तीनों यीशु मसीह के रोल हैं, इन तीनों का एक पर्पस है, व्यक्तिगत पर्पस है मेरे जीवन के लिए। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। He who knows that Jesus is his Savior वो जो जानते हैं यीशु बचाने वाला है, मसीह has है, been delivered from his past. वो अपने बीते हुए कल से छुड़ाए जा चुके He's हैं, been delivered from his sin. वो अपने पाप से छुड़ाए जा चुके He's been हैं, delivered from guilt. वो पश्चाताप से छुड़ाए जा He's been चुके हैं, delivered from darkness. वो अंधकार से छुड़ाए जा चुके हैं, Delivered from Satan's grip. वो शैतान के उससे चंगुल से छुड़ाए जा चुके Brought हैं, into the light. वो रोशनी में आ चुके हैं। His past is taken care. उसका जो बीता हुआ कल है उसको In यीशु fact, ने his डील past, किया है, present and future is taken care. उसका कल, आज और आने वाला कल सब यीशु ने देख लिया है। So God has taken care of my past. यीशु ने उसको समझ लिया है, संभाल लिया When है, he sent Jesus as my Savior. जब यीशु को वो छुड़ाने वाला करके भेजता है। But when God sent him as my High Priest, पर जब यीशु को वो महायाजक करके भेजता है, something changed. कुछ बदल जाता है। Now I want you to know something. मैं चाहता हूं आप यहाँ कुछ जाने। On the earth,
इस पूरे धरती पे He came as a savior. वो छुड़ाने वाला बन के आया। But when he rose up from the grave, पर वो जब कब्र से जी उठा, he entered into the heavenlies as my high priest. वो स्वर्ग में मेरा महायाजक बन के गया, And it's different. और वो अलग है। His role in heaven for me is of a role of a high priest in the most holy place. स्वर्ग में उसका जाना एक महायाजक के तौर पे जो मेरे लिए अलग है। I become the beneficiary of he representing me in heaven. मैं उसको उससे प्राप्त करने वाला हुआ जब वो स्वर्ग में मेरे लिए महायाजक बन के गया। And then when he becomes my bridegroom, और जब वो दूल्हा बनता है, something even amazing happens. कुछ और अद्भुत होता है। Everything changes. सब कुछ बदल जाता है। You know, everything changes. सब कुछ बदल जाता है। Because he loves me as his bride. वो मुझे एक दुल्हन करके मुझसे प्रेम करता And है, that's where my heart becomes passionate for him. और तब मेरा हृदय उसके लिए पागल हो जाता है। That's where I fall in love with him. तब मैं उससे बहुत अगाध प्रेम करता हूँ। And that's where I live in hope of his coming. तब मैं उसके आने की आशा में जीता हूँ। That's where I keep myself pure. तब मैं अपने आप को पवित्र रखता हूँ। That's where I don't compromise in Christian life. तब मैं अपने जीवन में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। If you have Jesus as a savior, जब आपके जीवन में यीशु छुड़ाने वाला you है, will still live in compromised life. आप फिर भी अपने जीवन में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। If you have Jesus as high priest, जब आपके जीवन में यीशु महायाजक करके है, you will still live as a compromised life. तब भी आप अपने जीवन में कुछ कॉम्प्रोमाइज But when करेंगे। you get Jesus as your coming bridegroom, पर जब आप यीशु को दूल्हा करके समझते हैं, that's where you begin to say no to sin. तब आप पाप को ना करते हैं। That's where you begin to say no to compromised life. तब आप अपने जीवन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं That's where करते। things change. तब चीजें बदलती So हैं। let's look into these three revelations आज इन तीनों चीजों को समझते हैं, प्रकाशनों को about देखते person हैं। of Christ. यीशु के प्रकाशनों को समझते You हैं। know, you worship this Jesus. आप इस यीशु की उपासना करते Look at हैं। what Bible says about this Jesus. देखिए वचन क्या कहता है। First John chapter 4 verse number 15. पहला यूहन्ना उसका चौथा चौथा अध्याय, पद 15 उसका वचन। 15वां वचन। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर। But let me read it from verse number 13 onwards. 13वें पद से पढ़ते हैं। By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us his spirit. इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। Listen. How do we know we abide in Christ? हमें कैसे पता चलता है कि हम उसमें बने रहते हैं? Is if I pray a lot, क्या इसलिए कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, if I study the word a lot, मैं बहुत ज़्यादा वचन पढ़ता हूँ, if I give a lot, मैं बहुत ज़्यादा दान देता हूँ, if I do a lot of righteous things? मैं बहुत से धार्मिक कार्य करता हूँ, Is this why I abide in Christ? इसलिए क्या मैं उसमें बना रहता हूँ? That I don't speak lies, मैं झूठ नहीं बोलता, I don't cheat anybody, मैं धोखा नहीं देता, I live a good life. मैं अच्छा जीवन जीता हूँ? Is that why I abide in Christ? क्या इसलिए मैं उसमें बना रहता The हूँ? Bible says, वचन कहता I है, abide in Christ because God gives his spirit to me. वचन कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ क्योंकि उसने अपना आत्मा मुझे दिया है। God did not give us only from the creation, he gave us from his spirit. परमेश्वर ने सिर्फ हमें अपने जो उसने सृष्टि से। सृष्टि में से नहीं दिया, पर उसने अपनी आत्मा में से भी हमें दिया है। Now please understand something. अब इस बात को समझिए। What does it mean to have in you the deposit from his spirit? इस बात को समझना जरूरी कि इसका क्या अर्थ है कि उसने अपनी आत्मा में से दिया है। Do you remember one day Moses was told, bring 70 people with you on the mountain? आपको स्मरण है एक दिन परमेश्वर ने मूसा को कहा 70 लोगों को अपने पास लेकर आ। And God said, from your spirit I'll put into them. और उसमें लिखा है कि मैं तेरी आत्मा में से निकाल के उनको दूंगा। So all the elders of the Israel और जितने भी अगुए हैं इजराइल के, had the spirit of Moses in them. उन पे मूसा की आत्मा आ गई। God said, from your spirit I will give to them. परमेश्वर ने कहा मैं तेरी आत्मा में से निकाल के उनमें But दूंगा। hey, to you and I, he did not give from the spirit of Moses, he gave from the spirit of himself. पर आपको मुझको उसने मूसा की आत्मा से नहीं, पर अपनी आत्मा में से दिया है। किसकी आत्मा में से? यीशु की आत्मा में से। किसकी आत्मा में से? God deposited in you from his spirit. परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आपकी आत्मा Now में let दिया me है। tell you a mystery. मैं आपको एक रहस्य की बात बताता See, हूँ। I'm not taking you from like if I would teach somebody who doesn't know Jesus.
मैं आप वैसे व्यक्ति को नहीं पढ़ा रहा जो यीशु को नहीं जानता। I've already done a series of righteousness. मैं धार्मिकता पे ऑलरेडी एक सीरीज पढ़ा You चुका हूं। already know who you are in Christ. आप जानते हैं आप यीशु में कौन है। You know what Jesus has done for you. आपको पता है यीशु ने आपके लिए क्या So किया my है। desire was not to start from ABCD, but today I am taking you into a deeper realm of the word. आज मेरी मंशा ये नहीं थी कि मैं दोबारा एबीसीडी शुरू करूं, पर मैं चाहता हूं आज आपको गहराई में लेके We are चलूं। going deeper into something. हम गहराई में वचन में जा Now रहे please हैं। understand अब something. इस बात को समझिए। You know, I used to think मैं समझता था ऐसे, I have my spirit. मेरे पास मेरी आत्मा है। The day I become born again, जब मैं फिर से जन्म लेता हूं, God's spirit will also come in me. परमेश्वर की आत्मा भी मुझ में आ Now जाएगी। inside me there are two spirits. अब मेरे अंदर दो आत्माएं होंगी, One is mine, एक मेरी, one is God's. एक परमेश्वर की। How many of you think it is true? आप में से कितनों को ऐसा लगता है? हाथ उठा के बताओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do you know we all are wrong if we are lifting our hands? अगर आप अपना हाथ उठा रहे हैं तो आपको पता चले कि हम सब गलत हैं। That's not what Bible says. ये वचन में नहीं लिखा। Now I want you to know the first miracle of Jesus. मैं चाहता हूँ यीशु के पहले चमत्कार को जाने। Something supernatural happens. कुछ अलौकिक अध्यात्म हुआ है। Something happens so dramatically, कुछ बहुत ही अद्भुत रीति से which हुआ, is beyond human imagination. वो हमारी मनुष्य की कल्पना से बाहर है। So when you become born again, जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, you know what has happened? आपको पता है क्या हुआ? When you are born again, जब आपका दोबारा जन्म हुआ, what has happened? क्या हुआ? Huh? पापों के कारण जो आत्मा मरी हुई थी वो जीवित कर दी है, पुनर्जीवित कर दी है। Right. So if spirit was dead, अगर आत्मा मरी हुई थी, then how were you alive? फिर आप और मैं कैसे जीवित थे? आत्मिक रूप से मरे हुए थे, शरीर में जीवित है। Exactly. So the spirit of life came in you. तो वो जो जीवन की आत्मा है वो आप में वापस आई। Now look into what this Bible says. देखिए वचन में क्या लिखा है। Read your word. अपना वचन पढ़िए। What is John saying to you? वो यूहन्ना क्या कह रहा है आपको? When Jesus came into my life, जब यीशु मेरे जीवन में आए, what happened? देखिए क्या हुआ। Verse number 13. 13वां पद, By this we know we abide in him and he in us, because he has given us his spirit. इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हाँ, कहां से दिया है उसने? अपनी आत्मा में से। So what did God do? परमेश्वर ने क्या किया? Did he give you another spirit or did he give you from his spirit? उसने आपको कोई दूसरी आत्मा दी और अपनी आत्मा में से दिया। हाँ, कब तक के लिए दिया? How long did he give you that spirit? कितने समय के लिए परमेश्वर ने आपको ये आत्मा दी है? You sure? Huh? When God gave you his spirit, do you know it's an eternal deal? That's why our life is eternal. क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी है, वो सदा के लिए है, इसलिए आप और मैं सदा के लिए Now हैं। here is my question. अब मेरा सवाल है आपसे, If God gave me his spirit, अगर परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है, so inside me lives whose spirit? तो मेरे अंदर किसकी आत्मा है? God's spirit lives in me. That's why Jesus said about himself, first, I am the light of the world. Then he said to his disciples, you are the light of the world. What was Jesus saying? यीशु मसीह क्या कह रहे थे? उन्होंने पहले कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर उन्होंने अपने चेलों को कहा तुम जगत की ज्योति हो। यीशु कहने क्या चाहते हैं? He is saying you are like me, or is he saying I am living my life through you? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे जैसे हो या मैं तुम्हारे द्वारा अपना जीवन जीता हूँ? You know, most of the people, when we are singing this song, actually I came preparing something else, and then we started singing this song, मुझे तेरे जैसा बना. मैं कुछ और तैयार करके आया था, पर जब वर्शिप में ये गाना होने लगा मुझे तेरे जैसा बना, तो मेरा मन बदल गया। In my heart, मैंने अपने हृदय में सोचा, I said, Lord, तुम मुझे अपने जैसा बना. This is what everybody prays. ये वो प्रार्थना है जो सब करते हैं, But is this what you did? पर क्या आपने ऐसा किया है परमेश्वर? You know, Lord doesn't want you to be like him. He wants to live, he wants you dead and he lives in you. अब परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उनके जैसे बने, परमेश्वर चाहते कि आप मरे और वो आपके द्वारा अपना जीवन जिए।
You know what Paul says? इसलिए पौलुस कहते हैं, I no longer live, Christ lives in me. पौलुस कहते हैं अब मैं जीवित नहीं रहा, पर अब मसीह मेरे द्वारा जीवित है। Now, what is it Paul saying? क्या कह रहा है पौलुस? God is saying, John is saying, from his spirit he has given me. जॉन कहता है उसने अपनी आत्मा में से मुझे दिया। Paul says, I no longer live, Christ lives in me. पौलुस कहता है कि मैं जीवित नहीं रहा, पर अब मसीह मुझ में जीवित है। What are they saying? कहना क्या चाह रहे हैं दोनों? Paul, don't you have your own spirit? क्या पौलुस तुम्हारे पास अपनी आत्मा नहीं? Is it not God's spirit living in you? क्या परमेश्वर की आत्मा तुम में जीवित नहीं? That is Holy Spirit living in you? क्या पवित्र आत्मा तुम में जीवित But नहीं? something amazing happened. पर कुछ अद्भुत हुआ है। Something amazing happened. सब कुछ अद्भुत हुआ है। When Christ came in you, जब यीशु मसीह आप में आए, something changed. कुछ बदल गया। The Bible says, वचन कहता है, you know, it says, he who fellowships with the Lord becomes one spirit with him. वो जो प्रभु के साथ संगति करता है उससे साथ एक हो जाता I है। think it's 1 Corinthians 6, verse number 17. 1 Corinthians chapter 6, verse number 17. जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Okay. जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ, जोर से बोलो, now explain me that part. अब मुझे ये बात समझाइए। If you live with Jesus, अगर आप यीशु के साथ रहते हैं, what happens? क्या होता है? You continue to be you and he continues to be him. क्या वो रहता है और आप रहते हैं? You use the word merging. आपने शब्द यूज किया मर्ज होना। Now listen something. अब समझिए यहाँ पर, There is a miracle that Moses did when his snake ate up all other snakes. एक चमत्कार है जो मूसा ने किया जब उसके सांप ने बाकी मिस्र के सांपों को खा लिया। That's the miracle Christ does in our life. वही चमत्कार यीशु ने हमारे जीवन It's में not किया। about his character, you know, removing my bad character. ऐसा नहीं कि उसका चरित्र मेरे चरित्र के बुरे भाग को हटाता है। It's basically he taking dominion of everything. ये ऐसा है कि वो सारी चीजों पर डोमिनियन लेती है। How does light do? रोशनी करती क्या है? When light is put on, जब रोशनी जलाई जाती है, darkness, you be there, I be there. Is it like that? ऐसा है कि अंधकार तू उधर रहे मैं इधर रहूंगा। What happens? क्या होता है? There is no room for darkness. अंधकार के लिए कोई जगह ही नहीं When light रहती। comes, darkness is gone. जब रोशनी आती है अंधकार चला जाता Now है। when we see I am saved and born again, जब मैं देखता हूँ कि मैं बचाया गया छुड़ाया गया हूँ, you know what devil tells us? शैतान क्या बताता Hey, है yes, हमको? you are born again, हाँ ये सच है, तू तेरा फिर से जन्म but you हुआ are है, you and Christ is Christ. पर तू है, ये मसीह है। And that's where we never enjoy what he has done. और यहाँ पर हम कभी उन बातों का आनंद नहीं ले पाते जो यीशु ने किया The है। Bible says he who is joined with the Lord यानी कि जो प्रभु के साथ संगति करता है becomes one spirit with him. वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। That word one spirit, वो जो शब्द है एक आत्मा होना, when you study it in Greek language, जब उसको आप ग्रीक में पढ़ते हैं, is exactly the same word वो वही शब्द है, used when Jesus said, I and Father are one. वो वही है जो जब यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। Now when Jesus said, I and Father are one, जब यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, he who has seen me has seen the Father. जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। What is Jesus saying? तो यीशु कह क्या रहे हैं? Tell me one thing, what is Jesus saying? क्या कह रहे हैं यीशु जब Are उन्होंने we ये two बात different कहा? people? क्या हम दो अलग हैं? Our roles are different. हमारा कार्य अलग है। What do I mean? See, the way we are expressing ourselves is different, जिस तरह हम अपने आप को प्रकट करते हैं वो अलग है, but we both are one. पर हम एक हैं। Father and I are one. पिता और मैं एक हैं। Now, no Pharisees understood that. और जितने फरीसी थे उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। Because for them the problem was, he is God, we don't even can't take his name. अब वो परमेश्वर है और हम उसका नाम भी नहीं ले सकते। He is so holy. वो इतना पवित्र And है। here comes a Jewish boy, और यहाँ पे एक यहूदी लड़का आता है born under the law, जो व्यवस्था में जन्मा है and says, और कहता है, and first of all he calls him Father. वो पहले तो उसको पिता कहता है And he परमेश्वर says, को, I and Father are one. और फिर कहता है मैं और पिता एक है। Now think about it. अब सोचिए इस विषय पे। He and Father became one. वो और पिता एक है। When they became one, जब वो एक हुए, when they are one, जब एक है, what happens? क्या हुआ? He who touches Jesus touches God. जिसने यीशु को छुआ उसने परमेश्वर को छुआ।
Whoever Jesus touches, God touches. जिसको यीशु ने छुआ उसको परमेश्वर ने If छुआ। Jesus speaks something, things change. जब यीशु ने कहा चीजें बदल गई। Yesterday I had privilege of visiting Dingra's कल family. मैं ढिंगरा परिवार में जाने का मुझे अनुभव And while हुआ we were eating food, और जब हम खाना खा रहे थे they began to tell us that the wonderful lesson, spiritual lesson they are learning is about declaration. उन्होंने बताया कैसे वो इन बातों को सीख रहे हैं उद्घोष करने का, अंगीकार करने का। And so now our prayer has changed. We declare things. अब उन्होंने कहा हमारी प्रार्थना बदल गई, अब हम चीजों को घोषित करते हैं। And I want you to understand. और मैं चाहता हूं इस बात को जाने। Just because you declared, nothing happens. आप सिर्फ आपने कहा इसलिए कुछ नहीं होगा। One day the Bible declares, वचन में लिखा है एक there दिन were sons of Sceva. स्किवा महायाजक के कुछ बच्चे थे। They found a guy who was demon possessed. एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्मा थी। So they brought him inside home उसे लेकर आए and began to rebuke that devil. और उस दुष्ट आत्मा को डांटने लगे। In the name of Jesus, यीशु के नाम से we command you to leave this हम तुझे man. आज्ञा देते हैं इसको छोड़कर जा। Demon didn't do anything. पर वो दुष्ट आत्मा कहीं नहीं गई, He was still there, वो फिर भी वहीं थी, enjoying. वो आनंद ले रही थी। And then they said, we command you in the name of Jesus whom Paul preaches. हम यीशु के नाम से जिसके बारे में पौलुस कहता है उसके नाम से कहते हैं जा। But demon still didn't go. फिर भी दुष्ट आत्मा कहीं Still नहीं गई, enjoying. वहीं आनंद ले रहे थे। Finally demon का हो गया दिमाग खराब. Got very upset. Then he said, hey listen, और फिर दुष्ट आत्मा ने कहा Jesus I know. यीशु को मैं जानता हूँ, Paul I know. यीशु को मैं पहचानती हूँ, Who are you to make command? तुम कौन हो जो मुझको आज्ञा दे रहे And then all 7 children, he stripped them naked and started beating all of them. They started running for their life. हो। और उसने उनको उठा पटक दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको भागने में मजबूर किया। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Declaration for the sake of declaration does nothing. घोषणा सिर्फ घोषणा के लिए काम नहीं करती, But when you become one with Christ and then you speak, जब आप यीशु के साथ एक हो जाते हैं और जब आप घोषणा करते हैं everything changes. सब कुछ बदलता है। Amen. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So just because you have heard a good message on YouTube, आपने YouTube पे एक अच्छा सुसमाचार सुना and है, the preacher said, we are born again children of God, we need to declare. उसने कहा कि हम छुड़ाए हुए फिर से जन्म लिए हुए बच्चे हैं, हमें डिक्लेयर करना चाहिए। Listen, as a born again child of God, ये एक दोबारा से जन्म लिए हुए बच्चे के समान and a person unified with Christ, और यीशु के साथ एक हुए व्यक्ति के सब में union with Christ, यीशु के साथ एक हो जाना are two different things. दो अलग अलग बातें हैं। As a born again child of God, you may continue to be very immature. एक दोबारा जन्म लिए बच्चे के तौर पे आप हो सकते हैं बहुत नए अपरिपक्व जन्मे हो, बच्चे, नए जन्मे के बच्चे के तौर पे आप बहुत अपरिपक्व हो सकते हैं And you want to declare things. और आप घोषणा करना चाहते हैं You are ending into trouble. और आप हो सकता है समस्याओं में पड़ जाए, Why? Because you're just imitating क्योंकि आप सिर्फ नकल कर रहे हैं, without plug-in. आप परमेश्वर में जुड़े हुए नहीं हैं। Now let me tell you something. अब मुझे बताने दीजिए What does it mean that I become one spirit with God? इसका मतलब क्या है कि मैं प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता हूँ। Like we have this extension board here. हमारे पास यहाँ एक एक्सटेंशन है This बिजली का, extension board is connected to the socket, power supply there. वो यहाँ इस पावर सप्लाई में जुड़ा हुआ है। Now if that socket is not connected, अगर ये यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ, this extension board has wire, has switch, has everything. इस एक्सटेंशन में सारी चीजें, तार है, स्विच है, सब कुछ है, Will the current flow there? क्या यहाँ पे बिजली आएगी? Why? It's not connected. क्योंकि ये जुड़ा हुआ नहीं है। So no matter whatever you plug in that, nothing will happen. वहां पे आप कुछ भी लगा दीजिए वो काम नहीं Now करेगा। many people want to declare things and the promises like that. बहुत से लोग घोषणा करना चाहते हैं, परमेश्वर के वायदों को घोषणा करना But चाहते they're हैं, not connected in Christ. पर वो मसीह में जुड़े हुए नहीं हैं, They're not really plugged in वो Christ. यीशु में सही तरीके से जुड़े हुए नहीं John हैं। says we abide in Him वो जॉन कहता है उसमें बने रहते हैं because He has given from His Spirit to क्योंकि us. उसने अपनी आत्मा में से दिया है। Why? How do I abide in Him? मैं कैसे उसमें बना रहता हूँ? Because He has given from His Spirit क्योंकि to उसने me. अपनी आत्मा में से दिया है, That's why there is no exit door. इसलिए फिर वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, Because it is His Spirit living क्योंकि यह उसकी आत्मा है जो रहती है in my body. मेरे शरीर में। Like God's Spirit was living in Jesus' body, जिस तरह परमेश्वर की आत्मा यीशु में थी, now the same Holy Spirit is living in your body. ठीक वैसे ही पवित्र आत्मा आपके और मेरे शरीर में है। That's why Paul says, don't you know your body is the temple of the Holy इसलिए Spirit. पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर He है, lives in you. वो आप में रहता He है, abides in वो you. आप में बना रहता It's the है, same Spirit. वो वही आत्मा है, Not your spirit. आपकी आत्मा नहीं, His Spirit. उसकी आत्मा।
His spirit, उसकी आत्मा, the spirit of God, परमेश्वर की आत्मा, staying in human body. वो मनुष्य में बना रहता That's है। why Bible declares इसलिए वचन में लिखा that है He has kept His innumerable, glory into an earthen vessel. इसलिए लिखा है वो उसने महिमा के धन को मिट्टी के बर्तनों में रखा है। Listen, in heaven there is no earthen vessel. स्वर्ग में कुछ भी मिट्टी के बर्तन नहीं है। It's talking about us. We are made out of ground. वो हमारे विषय में बात करे क्योंकि हम धूल से बनाए And He गए has हैं। put His spirit in us. उसने अपनी आत्मा को हम में My रखा friend, है। I want you to understand. मैं दोस्तों मैं चाहता हूँ इस बात को जानना। When the word says वचन में जब लिखा है that we are in Christ हम मसीह में हैं, and Christ is in me, मसीह हम में है, I am unified with Christ. हम मसीह के साथ एक हो गए हैं। My union with Christ. मेरा एक होना यीशु के साथ, When I become one in Christ, जब मैं यीशु के साथ एक हो जाता no हूँ, longer I live, but Christ lives in me. मैं नहीं रहता, मसीह मुझ में जीवित There are रहता many है। verses I can give you. out of बहुत से वचन मैं आपको दे सकता You हूँ। should go back and study this. आपको वापस जाके पढ़ना चाहिए। Why is it that Peter's shadow can heal? ऐसा क्यों था कि पतरस के छाया से भी लोग चंगे हो रहे थे? Because in him lived the greater I am. क्योंकि उसके अंदर वो बड़ा मैं हूँ रहता था। Why is it that if you lay hands, sick people get healed? ऐसा क्यों होता है जब आप हाथ रख के प्रार्थना करते हैं लोग चंगे होते No, हैं? you don't even have to pray. Bible says lay hand and they will be healed. वचन में लिखा है आपको प्रार्थना भी नहीं करना, सिर्फ आपको हाथ रखना है। Think about it. सोचिए इस विषय पे। If you lay hand, they'll be healed. आप हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। Why? क्यों? Because greater is he who is in you than he who is in the world. क्योंकि जो आप में वो बड़ा है उससे जो बाहर संसार में है। So you need to understand. आपको समझना होगा। Now this is the reality of your heart. ये आपके हृदय की एक सच्चाई है। That in you आप में is Christ's spirit. यीशु की मसीह की आत्मा है। Now if you believe this, अगर आप इस बात पे विश्वास करते listen हैं, carefully. ध्यान से सुनिए। If you believe in me is my spirit अगर आप इस बात को विश्वास करते हैं कि आप में आपकी आत्मा है and God's spirit, और परमेश्वर की I आत्मा just है, need to, live in my spirit and God's spirit is controlling me. और मुझे अपनी आत्मा में रहना है और परमेश्वर की आत्मा मुझे कंट्रोल करे, Then sometime I am high and sometime I am low. फिर कभी आप अच्छे होंगे, कभी आप नीचे जाएंगे। But when I believe that God's spirit is in me, पर जब आप इस बात को विश्वास करते हैं कि मसीह की आत्मा मुझ and में है, like Paul believed, I no longer live. जैसा पौलुस का विश्वास था कि मैं अब जीवित नहीं रहा, Christ lives in me. अब मसीह मुझ में जीवित रहता है। Paul, what do you mean Christ lives in you? इसका मतलब क्या कि मसीह मुझ में जीवित है? What do you mean you no longer live? इसका क्या मतलब है कि अब तुम जीवित नहीं रहे? अरे बाबा, ज्यादा नहीं हो गया क्या? This is blasphemy. ये तो परमेश्वर की निंदा है। But look at what Paul is saying. देखिए पौलुस क्या कह रहा है, I no longer live. मैं अब जीवित नहीं रहा। Huh? Who is preaching? Who is writing? Who is falling sick? Who is having all this कौन problem? प्रचार कर रहा है, कौन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, कौन है ये? He began to understand उसने एक बात समझी, what God did for me when He saved me. जो मसीह ने मेरे लिए किया जब वो मुझे बचाया, He undo everything of past. उसने सब कुछ जो मेरे पिछले जीवन का था बदल दिया। Now listen. ध्यान से सुनिए। There was a beautiful car. एक बहुत सुंदर गाड़ी थी, It had a road accident. उसका एक एक्सीडेंट हो गया, It went into garage. वो गैरेज में गई The mechanic repaired it completely. और जो मैकेनिक उसने सब कुछ उसका रिपेयर किया, Painted it new. उसको नया पेंट दिया, And now the car is back. अब वो वापस गाड़ी बाहर आई। Many people believe their salvation is like this. बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि उनका उद्धार ऐसा है, But what God did पर जो परमेश्वर ने is किया, not modified you. उसने आपको मॉडिफाई नहीं Did किया not है, repair you. आपको रिपेयर नहीं किया है। You know what God did? पता है आपको परमेश्वर ने क्या किया? Replaced you. उसने आपको बदल दिया है। There was a car. एक गाड़ी थी, It became accident car. उसका एक्सीडेंट हो गया, So you know what he did? उसने क्या किया? He said, okay, उसने कहा ठीक है, change the model. उसने सब कुछ बदल दो। No longer first Adam. अब वो पहला आदम नहीं है, I'm going to create something new. अब मैं कुछ नया करने पर हूँ, New Adam. नया आदम। Christ became the new Adam. मसीह नया आदम बन के आया। You know what he did? उसने मालूम है क्या किया? He didn't repair me. उसने मुझे रिपेयर नहीं किया He है, made me new creation. उसने मुझे नई सृष्टि बना दी। What do you mean by new creation? आप नई सृष्टि से क्या समझते हैं? That means you used to be there, इसका मतलब आप वहां पर थे and from today you are new creation. और फिर आज से आप नए हो गए। If you are a new creation,
अगर आप नई सृष्टि हैं, that means you never existed before. इसका मतलब आप पहले अस्तित्व में थे ही नहीं। If you existed before, how can you be new? अगर आप पहले से अस्तित्व में थे तो फिर आप नए कैसे हुए? The Bible says we are new creation. वचन कहता है हम नई सृष्टि हैं, Old things are past. पुरानी बातें बीत गई, Everything has become new. सब कुछ नया हो गया। You know what newness is? आपको पता है नया होना क्या No है? longer I live, Christ lives in me. आपको नया होना यह है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित That है। is a miracle. ये चमत्कार है। But the religious mind battles that thought. और जो धर्म की मानसिकता है वो इस बात से द्वंद्व करता है। Religious mind doesn't believe that. धर्म की मानसिकता वाला इस बात पे विश्वास I नहीं कर want you पाता। to know your spirit man. Bible doesn't say he becomes one mind with Christ. He says he becomes one spirit with God. वचन में नहीं लिखा कि वो परमेश्वर के साथ एक मन होता है, लिखा है एक आत्मा हो जाता There's है। difference becoming one mind and one spirit. एक मन होने और एक आत्मा होने में फर्क है। God starts with spirit, परमेश्वर आत्मा से शुरू करता है then gives his word और अपना वचन देता है and tells us renew your mind according to my और word. कहता है इस वचन के अनुसार अपना मन नया कर। So what I'm trying to say, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? what I'm trying to tell you is what Paul tried to teach to the church. मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो पौल ने कलीसिया को बताने का प्रयास What किया। Paul said to the church, पौलुस ने जो कलीसिया को you are कहा, no longer you आप नहीं है, because God lives in you. क्योंकि परमेश्वर आप में रहता है। You are no longer the ordinary. आप वो साधारण नहीं रहे, You are supernatural. अब आप सुपरनैचुरल You हैं। are no longer the ordinary. आप साधारण नहीं You हैं, are heavenly. आप स्वर्गीय हैं। Come with me to 1 Corinthians पहले कुरिन्थियों का चलते हैं, chapter 15 15वां अध्याय। and reread this scripture passage. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। Okay, now pay very close attention. बहुत ध्यान से देखिए इस पद को। Bible is talking about two people here. यहाँ वचन दो लोगों के विषय में बात कर Open रहा your है। Bibles. अपने वचन को 1 खोलें। Corinthians 15 verse number पहला 45. कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 45वां पद। And begin to listen to the word that Paul is teaching to the church. और सुनिए जो पौलुस ने उस कलीसिया को लिखा है। Now I have request. Anup, can you come forward please? And Mahinder bhai, can you come forward please? Now pay attention to this. और देखिए ध्यान से देखिए इस बात को। Okay. First, let's read from verse number 45 onwards till verse number 49. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप को भी धारण करेंगे। Okay. Now, in your Bible, where it is written, उस स्वर्गीय रूप को भी धारण करेंगे, you will find before that sentence there is an asterisk sign. जहाँ पे आपके वचन में यह लिखा है स्वर्गीय रूप को धारण करेंगे, वहाँ पे एक एस्टेरिक साइन लगा हुआ है आपके बाइबल में? नाउ फुटनोट में देखो एग्जैक्टली वही साइन के नीचे उसका रियल ग्रीक मीनिंग क्या है। ओके, आपके यहाँ एस्टेरिक साइन लिखा है? एस्टेरिक साइन नहीं है। ओके, लेट मी शो इट टू यू। In English Bible, there is an asterisk sign here in verse number 49. Let us also bear the image of the heavenly man. We shall also bear is what Hindi is saying. हिंदी में लिखा है हम धारण करेंगे, But in Greek, it doesn't say we shall also bear. It says let us also bear. वहाँ पे लिखा है हमें धारण करना चाहिए, let us। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Now listen to this word carefully. ध्यान से सुनिए इस पद। Verse number 45. 45वां पद। It is written that the first Adam became a living being. ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी Suppose बना। this is the first Adam. देखिए ये अगर महेंद्र भाई अगर पहला आदम We है, read in Genesis chapter 1 verse 26, God said, let us make man in our image and our likeness. उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में लिखा है आओ मनुष्य अपने स्वरूप अपनी समानता में And then बनाए। Bible says, God breathed in him. और फिर लिखा है परमेश्वर ने अपनी श्वास को फूका। क्या किया परमेश्वर ने? अपनी श्वास फूका, God breathed in him. उसने अपनी श्वास को फूका। Now when God breathed in him, जब परमेश्वर ने उसमें अपनी श्वास फूकी, guess what happened? क्या हुआ? Huh? What did he become? जीवित प्राणी। Living.
राइट? क्या लिखा है यहाँ पे? अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, So he became alive. वो जीवित हो गया। He became alive. But how was Jesus the second Adam? पर दूसरे आदम के लिए लिखा है, What does it say? अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। So when God breathed in Jesus, जब यीशु ने आत्मा, परमेश्वर ने आत्मा में यीशु में फूका, he didn't just become alive, वो न सिर्फ जीवित हुआ, he became life giver. वो जीवन देने वाला बन गया, He became the source of life. वो जीवन का सोर्स बन गया। This one was just alive. ये सिर्फ जीवित था, Like dog is alive, जैसे कोई दूसरा प्राणी कुत्ता जिंदा है, elephant is जैसे alive, हाथी जिंदा है, trees are जैसे alive. पेड़ है, He became a living soul, living being. वो एक जीवित प्राणी बना। But Jesus did not become living being. He became the source of life. पर यीशु को जीवित नहीं बना, वो जीवन देने वाला बना। You getting it? क्या आपको समझ में आ You रहा है? understanding? क्या आप समझ The पा रहे हैं? difference? क्या इस Who अंतर is को आप more देख सकते powerful? हैं? कौन ज्यादा सामर्थी है? He was alive, ये but जीवित है, he could not give life to पर ये anybody. दूसरों को जीवन नहीं दे सकता। He became the source of life. पर ये- Martha, resurrection and life, I am. ये जीवित प्राणी बना, इसने मार्था को कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। You see? देख रहे हैं आप? I was, I am, I was dead, I am alive, and I live forevermore. मैं था, मैं हूं, मैं जीवित, मैं मर गया था और अब मैं सदा के लिए जीवित हूं। He says, I am the Alpha and the Omega. मैं अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। That's who he became. ये है जो वो बन गया। Now think about it. अब सोचिए इस विषय पे। With Jesus, this is who he is. यीशु ये जो है, Next verse. अगला पद, What does it say? परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। Okay. First wasn't the spiritual man. पहला है ये आत्मिक नहीं है, He was natural. ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। Adam was a natural man. आदम स्वाभाविक था, He wasn't a spiritual man. वो आत्मिक नहीं था। Understanding? On the day when God created Adam, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, even though God breathed in him परमेश्वर ने इसमें फूका his breath, अपनी श्वास को, his spirit, अपनी आत्मा, he wasn't spiritual. ये आत्मिक नहीं था, He was natural. ये स्वाभाविक था। But with Jesus it is different. पर यीशु के साथ अलग है। What does it say? इसके बाद आत्मिक हुआ, He was spiritual. पर ये आत्मिक है। The last Adam was spiritual. जो दूसरा आदम आत्मिक है, Who was he? कौन है ये? Natural or spiritual? Spiritual. Now guess what happens? देखिए क्या हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। Okay. First man was from where? पहला कहां से था? आदम। Out of the dust God made Adam. मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया। Right? पहला मनुष्य कहां से था? So इसका एंड परमेश्वर ने क्या बोला? You are dust, you will go back to. परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी से थे, वापस मिट्टी में मिल जाएगा। Correct? But where was he from? दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। कहां से? स्वर्गीय है। Where was he born from? ये कहां से पैदा हुआ? Angel came to Mary स्वर्गदूत मरियम के पास and आया said, Mary, और उससे कहा you will be pregnant तू गर्भवती होगी and you will give birth to a son. और एक बेटे को जन्म देगी, Name him Jesus. उसका नाम यीशु रखना। He will save his people from their sins. वो अपने लोगों को पाप से बचाएगा। She said, how will this be? I don't know, ma'am. उसने कहा मैं किसी पुरुष को नहीं जानती है, कैसे होगा? So listen, उसने कहा सुन, it is not a natural birth. ये स्वाभाविक नहीं है। It is not because you know a man physically. इसलिए नहीं क्योंकि तू किस मनुष्य पुरुष को It जानेगी, is supernatural. ये अलौकिक होगा। Spirit of living God will come upon you and this impossible will become possible. जीते परमेश्वर की आत्मा तुझ पे साया करेगी और ये असंभव संभव होगा। आमीन। How was Jesus born? कैसे यीशु का जन्म हुआ? Spirit of God came into the womb of a woman परमेश्वर का आत्मा एक स्त्री के गर्भ में आया and Jesus was born. और यीशु का जन्म हुआ। You understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Okay? How were you and I born again? आप और मैं कैसे पैदा होते दोबारा? Not नया by जन्म the कैसे will होते? of father or the mother or any human will. We were born by the will of God. हम किसी अपने माता पिता की मर्जी से नहीं, पर परमेश्वर की मर्जी से दोबारा नया By जन्म the लेते हैं। Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म लेते हैं। Amen. The birth of Jesus and our born again
experience is exactly same. यीशु का जन्म लेना और हमारा नए सिरे से जन्म लेना दोनों एक ही है। How was the church born? कलीसिया का जन्म कैसे हुआ? Acts chapter 2. मृत्यु के काम उसका दूसरा There was अध्याय a mighty sound of a rushing wind from heaven and the church was born. स्वर्ग से एक बड़ी सनसनाहट की सी आवाज हुई और कलीसिया का जन्म हुआ। Do you see that? क्या आप देख पा रहे हैं? That's amazing. अद्भुत है Now ये। see what Bible says here. देखिए आगे क्या लिखा है। One was natural, another one was spiritual. Verse number 47. One was from the earth, made out of dust. The second one was the Lord from heaven. प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। Listen. In English Bible it says he was the Lord from heaven. वो स्वर्ग से है, स्वर्ग का प्रभु है। He is a heavenly man. वो स्वर्गीय है। Earthly man, ये धरती का है, heavenly man. ये स्वर्गीय है। Now please see something. देखिए यहाँ पे कुछ Paul is saying the difference between Adam and Jesus. पॉल बता रहे हैं आदम में और प्रभु में क्या फर्क है। Correct? Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Adam is natural, Jesus is heavenly. आदम स्वाभाविक है और यीशु स्वर्गीय है। Adam is made out of dust ये मिट्टी से बना हुआ है and he will go back to dust. और ये वापस मिट्टी में जाएगा। But Jesus is not from the dust, पर यीशु मिट्टी का नहीं he is है, from the वो heaven. स्वर्ग से है। So when he rose up from the grave, जब वो कब्र से जी उठा, he went back to heaven. वापस स्वर्ग में गया। Because wherever you are from, that's where you go. आप जहां से हैं आप वापस वहीं जाते हैं। That's why grave could not hold him. इसलिए कब्र उसे बांध कर नहीं रख सका। Why? क्यों? He is not from the earth. क्योंकि वो धरती का है ही Grave नहीं। can hold him कब्र इसे बांध सकता है because earth is the mother of this guy. क्योंकि धरती से ये पैदा हुआ है, But grave cannot hold him पर कब्र इसे रोक नहीं सकता because he is from heaven. क्योंकि ये स्वर्गीय है। That's why grave had to let him go. इसलिए कब्र को इसे जाने देना पड़ेगा। I want you to मैं understand. चाहता हूं इस बात को जाने। That's why because he is heavenly, चूंकि ये स्वर्गीय है, death cannot hold him. इसलिए मृत्यु ने इसे अपने पास में नहीं रख पाया, Grave cannot hold him. कब्र इसे नहीं रख पाया He is heavenly being. क्योंकि वो स्वर्गीय है। Now guess what happens? देखिए क्या हुआ। Next verse. अगला Paul पद says, कहता है he जैसा says- वो मिट्टी का था हाँ। वैसे ही और मिट्टी के हैं। Okay. As Adam is of the dust, जैसा ये आदम मिट्टी का है, many are also of the dust. बहुत से और भी हैं जो मिट्टी के हैं। Right? Now listen. समझिए इस बात को। Paul is not saying all are of dust. He's Paul- saying many are of dust. पौलुस ये नहीं कह रहा सारे मिट्टी के हैं, बोल रहा है और भी हैं जो मिट्टी के हैं। Who are those? कौन है ये लोग? Everybody born in flesh वो सब जो शरीर में जन्मे हैं are of dust. मिट्टी के हैं। Everybody who is born biologically वो जो शरीर से जन्मे हैं are of dust. मिट्टी के हैं। You're getting it? Okay? There are many of dust. बहुत हैं जो मिट्टी के हैं। Then what it says? और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे और भी स्वर्गीय है। Now listen carefully. As he is heavenly, जैसा ये स्वर्गीय है, there are many who are heavenly. बहुत और हैं जो स्वर्गीय Now हैं। tell me one thing. या मुझे एक बात बताइए, Who are these many who are ये heavenly? कौन है और जो स्वर्गीय हैं? All those who are born again. जो नए सिरे से जन्मे हैं, ये उनके विषय में है। When you're born in flesh, जब आप शरीर में जन्म लेते you have हैं, the DNA of your earthly father and mother. आप में अपने जो शारीरिक माता पिता की संरचना होती है। But when you are born again, जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, you नया have जन्म a लेते हैं, DNA of a heavenly man. आप में उस स्वर्गीय पुरुष की संरचना आती है। You are no longer earthly. अब आप और धरती के नहीं रहते, You are born again as a heavenly being. आप नए सिरे से स्वर्गीय बन के पैदा होते हैं। And as Jesus came from heaven to fulfill a purpose and go back to heaven, you and I are born again from heaven to fulfill a purpose and go back to heaven. जैसे यीशु स्वर्ग से एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया और उसे पूरा करके वापस गया, वैसे ही आप और मैं भी एक उद्देश्य के लिए नया जन्म लेते हैं। Open your Bibles to John chapter 8 verse number 23. जॉन चैप्टर 8 Verse number 23. 3। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। Okay. What did Jesus say? देखिए यीशु ने क्या कहा। सबको मिला? Huh? Everybody, you are there in your Bible?
Okay, what did Jesus say? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। Tell me one thing. मुझे एक बात बताइए, Did Jesus know where he come from? क्या यीशु को पता है वो कहां से है? That's what Paul is saying. He was heavenly. और यही पौलुस कह रहा है कि वो स्वर्गीय है। To the church of Corinthians, he was saying, hey, Jesus who you serve is not earthly. वो यीशु जिसकी तुम सेवा करते हो वो संसारिक नहीं है, जमीन का नहीं है। Now the salvation that he gives is not earthly. वो जो उद्धार तुम्हें देता है वो संसारिक नहीं है, धरती का नहीं है, Heavenly product. वो स्वर्गीय है। Do you know your salvation is heavenly? क्या आपको पता है आपका उद्धार स्वर्गीय है? That's why it does not have an expiry date. इसलिए इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, Because he comes from heaven. क्योंकि वो स्वर्ग से आता है। Everything from earth has an expiry date. जो कुछ धरती का है वो एक समय नष्ट होता है, Everything from heaven is eternal. और जो कुछ स्वर्गीय वो सदा का है। So Jesus came with salvation for us. यीशु उद्धार लेकर हमारे पास आया And he made you a new person. और उसने आपको नया बना दिया Why? है। Because you are no longer Adam's seed, you became Jesus' seed. अब आप आदम के बीज नहीं, आप यीशु के बीज हैं। Now here is my question. अब मेरा सवाल आपसे है, Because you are Jesus' seed, आप यीशु के बीज हैं, you are no longer your spirit. He is living in you. अब वो आप में आपका आत्मा नहीं, यीशु आप में रहता You है, become one spirit with him. आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते So हैं। on the day of the judgment, जिस दिन न्याय का दिन होगा, is God going to send his spirit to hell? क्या वो अपने अपने बीज को नष्ट करने के लिए भेजेगा? But if you believe I am two spirit, I am me and Jesus is staying in me, then you will always fear going to hell. अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आपकी अपनी आत्मा है और यीशु की भी आत्मा है, तो आप हमेशा डरेंगे नरक से। But if you believe what Paul believed, पर जो पौल विश्वास करता है, I am ready to die मैं मरने के लिए तैयार हूं, and the crown waits for me. और स्वर्ग में मेरे लिए क्राउन इंतजार कर रहा है। मुकुट मेरी राह देख रहा है। Paul, how are you so bold here? Because I have revelation. I no longer live. The day Jesus was crucified, Paul was crucified. Now when Jesus rose up, Paul did not rise up. Christ rose up, and that Christ took the new vessel. बताओ। पौल के फिर से कर दिया। Okay, मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूं। पौलुस, तुझे कैसे ये बोल्डनेस है कि अब परमेश्वर जब आएगा, जब तू अर्थ की नई उंडे लेने जा रहा है, तू मरने वाला है, और तू ये कहता खुद के बारे में, अब मैं मरने पर हूं और मेरे लिए वो जीवन का मुकुट रखा हुआ है। तू मरने से डर नहीं रहा पौलुस? हाउ आर यू श्योर कि तेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है? क्योंकि पौल के पास ये प्रकाशन है, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीता है, और मसीह के लिए हेल नहीं है। आमीन। अगर आप अपने दिल में ये मानेंगे कि मैं हूं और यीशु का आत्मा मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, पर हम दोनों एक नहीं हुए हैं, वो मेरे साथ है, राइट? वी टू आर टुगेदर बट वी आर नॉट वन. इफ यू डोंट बिलीव वी आर नॉट वन, you will always remain in fear. यदि आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि हम दोनों एक हो गए, तो आप हमेशा डर में जिएंगे कि भाई मेरे से कुछ चूक हो गई तो मैं नरक। कल हम ढिंगराज के घर में जब बात कर रहे थे, they said to me something, हमारा अब तक मानना ये था ब्रदर कि यीशु मसीह ने आपके पास्ट को सब कर दिया, अब हमको प्योर कर दिया, अब बोला अब मेंटेन करो खुद को। अब अगर आपने अपने आप को मेंटेन नहीं किया तो आप नरक चले जाएंगे। कितना गंदा बिजनेस किया यीशु मसीह ने, उसको मालूम था अगर हम खुद को मेंटेन कर सकते थे तो पहले ही कर लेते, आने की क्या जरूरत थी, राइट? सुनो ध्यान से, सूअर की फितरत होती है गंदगी में जाना, करेक्ट? उसने हमको सूअर को नहलाया नहीं, सूअर को नहला के साफ नहीं किया, उसने हमको मेमना बना दिया। आमीन। हम सूअर नहीं है अब। हेलो,
एक दिन एक सूअर का बच्चा और एक मेमना दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, सामने से एक ट्रक आया। अब जैसे ट्रक आया, दोनों को बचने के लिए जगह नहीं थी, दोनों धड़ाम से गंदे नाली में गिर गए, दोनों गंदे हो गए। जैसे ही गंदे हो गए, गिर गए, मेमना तुरंत निकला, अपने आप को झाड़ से घसने लगा और साफ करने लगा। सूअर बोला हा 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 हा, मजा आ गया, इधर ही रहता हूं। क्या हो गया? दोनों का स्वभाव डिफरेंट है। Yesterday something amazing happened. कल कुछ एक बहुत अद्भुत बात We हुई। have a friend Tilak Raj, एक मेरे मित्र हैं तिलक राज, and he came and he said to me on phone, और मुझसे फोन पे बात कर रहे थे। and he said to me, there is change happening in me, उन्होंने मुझ में एक बदलाव हो रहा and है I'm not liking it. और मुझे पसंद नहीं आ रहा। I used to be a man who used to do this and that and that and that, मैं एक ऐसा मनुष्य था जो ये करता था, बहुत कुछ करता था, and now my heart is like, if it comes on pride, I used to do this, but now, like, I'm listening other people's talks, अब मैं दूसरों की बातें सुन लेता हूँ, सह लेता हूँ, and I don't want to react. और मैं उन पे कुछ रिएक्ट नहीं करता। Even if they're angry at me, I don't want to react. अब वो कई बार कुछ गलत भी करते, पर मैं रिएक्ट नहीं I करता। am losing my name and my status. मैं अपना नाम और अपना स्टेटस खो रहा I हूँ। don't know what is happening. मैं नहीं जानता क्या हो So रहा I'm है, getting frustrated. मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। Bye, welcome to the new world. और मैंने कहा आपका नए जीवन में स्वागत है। God started pulling this man. परमेश्वर उस मनुष्य को खींच रहे हैं। I want you to know, मैं चाहता हूँ इस बात को things जाने। I used to do, I do them no more. There is a great change in me. जो मैं पहले करता था और नहीं कर रहा, तो मुझे एक बड़ा बदलाव है। This is the song, right? But let me tell you, अब मुझे बताने दीजिए, God didn't make a great change in you. परमेश्वर ने आप में बड़ा बदलाव नहीं He किया है, changed you. उसने आपको ही बदल दिया है। आमीन। He did not decorated your house. He gave you a new house. उसने आपके घर को सुंदर नहीं बनाया, उसने आपको नया घर ही दिया है। And the Bible says in 1 Corinthians 15, इसलिए वचन पहले कुरिन्थियों में कहता है, verse number 49, as was the man of dust, so are also those who are made of dust. जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, And as it is heavenly man, so are also those who are heavenly. जैसा वो स्वर्गीय है वैसे और भी स्वर्गीय है। Now we saw how Jesus in John chapter 8 said, I am not from the earth, I am from heaven, you are from the earth. जैसे आपने देखा यूहन्ना के 8वें अध्याय में यीशु ने कहा, मैं संसार का नहीं हूं, मैं नीचे का नहीं हूं, मैं ऊपर का हूं। You see, John chapter 8 verse number 29, आपने देखा, sorry 23, आपने देखा यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 23वां पद, read it again once more. फिर से पढ़े, John 8:23. यूहन्ना 8:23। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। Okay, who was Jesus speaking to? किससे यीशु ये बात कर रहे हैं? In John chapter 8. 8वें अध्याय में यूहन्ना के। Is he talking this to his own disciples? क्या वो अपने चेलों से कह रहे हैं? Who is he talking to? किससे बात कर रहे हैं वो? Huh? To the Jews, यहूदियों से वो बात कर to रहे the हैं, Pharisees, फरीसियों से कर रहे to हैं, the Sadducees, जो सदुकी उनसे कह to the रहे हैं, religious folk. वो जो धार्मिक लोग हैं उनसे कह रहे He's हैं, telling them, उनको बता रहे हैं बात, you are from the earth, तुम धरती के हो, I am from heaven. मैं स्वर्गीय हूँ। Right? But to his disciples, see what he says. पर अपने चेलों को वो क्या कहते हैं, देखिए। Open your Bibles to John chapter 15 verse number 16. John यूहन्ना 15, 15 16. उसका 16वां पद। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। Okay, read with me verse number 19. यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Hello. आमीन। Listen carefully. What is Jesus saying? भाई चेयर लेके बैठ जाओ, आप भी चेयर लेके बैठ जाओ, अभी बहुत लंबा जाना है अपने को, जाएंगे मस्त, हाँ उधर ही बैठ जाओ। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए इस बात को, Everyone pay attention. ध्यान से इस बात पे। Nobody has problem believing that Jesus is from heaven. किसी को इस बात पे विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि यीशु स्वर्गीय है, We all believe. सब विश्वास करते हैं। And if the disciple, if you as a believer say, I am from heaven, पर एक विश्वासी के तौर पे, चेले के तौर पे अगर आप कहें कि आप स्वर्गीय so हैं, another believer will say, दिमाग खराब हो गया क्या? कहाँ जीसस, तू अपने आप को कंपेयर कर रहा है जीसस के साथ? जगहों पे है कि नहीं? But look what Jesus is saying. पर देखिए यीशु क्या कह रहे हैं। Do you believe that Jesus speaks truth? क्या आपको विश्वास है यीशु सच बोलते हैं? How many of you believe Jesus speaks truth? Listen carefully.
If today what I am teaching, your mind becomes doubtful of that, अगर जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ इसको लेके आगे आपके मन में शंका है, that simply means I am not a false teacher. You don't believe in what Jesus said. इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मैं गलत शिक्षक हूँ, आप उसमें विश्वास नहीं करें जो यीशु ने कहा है। Now I want to show you what Jesus said. मैं आपको दिखाता हूँ जो यीशु ने कहा। To the Pharisees, he said. फरीसियों को उसने कहा। To the religious people, he said. जो धार्मिक लोग हैं उनको कहा। To the Jews, he said. यहूदियों को उसने कहा। To the people, the crowd, he said. जो भीड़ के लोगों को उसने कहा, You are from earth, I am from heaven. उसे तुम नीचे के हो, मैं स्वर्गीय हूं। Correct? समझ गए? But to his disciples he said something पर else. अपने चेलों को उसने कहा, What did he say to his own disciples? यदि तुम संसार के होते, John chapter 15, verse number 19. यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Hello, what is Jesus saying? यीशु क्या कह रहे हैं? What is Jesus saying to Peter? वो पतरस को क्या कह रहे हैं? बताओ। और जॉन और जेम्स और बर्थोलमै, जॉन को, जेम्स को, बरतिमाई को what is क्या he कह saying to रहे हैं? his disciples? अपने चेलों को क्या कह रहे हैं? Hey, you know something? You're not of the earth. तुम संसार के नहीं हो। Disciples have no problem believing Jesus is not from the earth. चेलों को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी कि यीशु स्वर्गीय है, But the problem comes when Jesus says, you are not from the earth. पर दिक्कत तभी जब यीशु ने उनको कहा कि तुम संसार के नहीं हो, तुम धरती के नहीं हो। When Jesus says, you are not from the earth. तुम धरती के नहीं हो, You are not from the earth. तुम धरती के नहीं हो, You're not from the earth. तुम धरती के नहीं You're हो, not from the earth. तुम धरती के You're नहीं हो, not from the earth. धरती के नहीं You're हो, not from the earth. तुम धरती के नहीं हो। So the first revelation I told you need to have of Jesus is you need to understand he is Messiah. जो पहला प्रकाशन आपको यीशु के बारे में जानने की जरूरत है वो ये कि वो मसीहा है। And when you tap into the ministry of Messiah, something changes. जब आप उस मसाया की सेवकाई में अंदर आते हैं तो कुछ बदल जाता है। Your earthly umbilical cord is cut and heavenly umbilical cord is जो आपका connected. धरती से जुड़ाव है उसे वो काट कर स्वर्ग में जोड़ देता है। You are no longer earthly product. अब आप धरती के नहीं रहते, That's why resurrection is for you. इसलिए जो पुनरुत्थान है वो आपके लिए That's है, why rapture is for you. इसलिए वो रैप्चर आपके लिए Why है। is church getting raptured and nobody else is getting raptured? क्यों ये जो कलीसिया है वो उठा ली जाएगी और कोई और उठाया नहीं जाएगा? Because church is heavenly. क्योंकि कलीसिया स्वर्गीय है, Because it is heavenly. क्योंकि ये स्वर्गीय है, Rapture belongs to us. इसलिए उठाया जाना हमारे My लिए है। friend, I want you to know मेरे this. दोस्तों मैं चाहता हूँ इस बात को He जाने, will not allow his holy one to be destroyed in वो the अपने grave. पवित्र लोगों को कब्र में सड़ने नहीं देगा। That simply means इसका मतलब ये if है, I die and I am buried, अगर मैं मर गया और गाड़ दिया the day गया, trumpet blows, जिस दिन तुरही फूकी the जाएगी, grave will be made open, वो कब्र खुल and the जाएगा, heavenly one which is resting will be resurrected जो and स्वर्गीय है fly और वो high. उठा लिए जाएंगे। That's the mystery we have in Christ. ये रहस्य जो यीशु में हमारे You're लिए है। not ordinary people. हम साधारण नहीं हैं। The devil tells us you're ordinary. शैतान कहता है हम साधारण He हैं। will bring circumstances in our life that वो ऐसी tells us you're परिस्थितियां लाते हैं ordinary. जो हमें बताते हैं हम He'll साधारण bring हैं। doubt in your mind saying you're ordinary. आपके मन में शंका लाता है ताकि But आप no, माने that's not what साधारण हैं। Jesus said. पर ये वो नहीं जो यीशु ने कहा। Jesus said, I came to seek and save which was lost. वो मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूँ। खोने के लिए पहले होना तो चाहिए। आमीन। जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं उसको तुम खो सकते क्या? बोलो ना। But if Jesus is saying, I came to seek which is lost, that means I belong to him even before I believe in him. अगर यीशु ने कहा मैं अगर खोए हुए को ढूंढने आया, उसका मतलब है कि हम उसके थे इसके पहले कि जब हम खो गए। Because you were his, you believed in him. आप उसके थे इसलिए आपने उस पर विश्वास किया। It was like when iron pieces were there, iron pieces were इसका fallen, मतलब बहुत छोटे आयरन के पीसेस थे, and God wanted those iron pieces. वो सारे लोहे के टुकड़े यीशु परमेश्वर चाहते थे। उसने अपना मैग्नेट घुमाया, जितना आयन था चिपक गया. आमीन। That's what cross is. ये क्रॉस की कहानी है। Cross is a magnet for the sons of God. जो परमेश्वर के बेटे हैं उनके लिए क्रॉस एक मैग्नेट है। Because those who are kept for born again will be attracted to it. जो नए जन्म के लिए रखे गए हैं वो उसकी तरफ आएंगे ही। My friend, I want you to see this. मैं दोस्तों चाहता हूं इस बात को देखें। We have no problem believing as Jesus as the Lord of heaven and Jesus as a supernatural and Jesus as so and so. हमें इस बात में कभी शंका नहीं होती कि यीशु स्वर्गीय है, वो प्रभु है, उन बातों पे कभी हम शंका नहीं But when करते। Jesus became your Messiah, पर जब वो आपका मसीहा होता है, he made himself,
available to you in such a way that you become like him. वो आपके लिए ऐसे उपलब्ध हो जाता है कि आप उसमें एक हो जाते हैं। Jesus is basically telling his disciples, यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं, stop thinking in your mind that you're earthly. ये सोचना बंद कर दो कि तुम धरती के हो, You are heavenly. आप स्वर्गीय हो। That's why John was standing there that day when Jesus said this. जब यीशु ने ये बात कही, यूहन्ना वहीं खड़ा था। Because Jesus said to John as well, ये बात यीशु ने यूहन्ना को भी कही है। they persecute you because you're not earthly, you're heavenly. वो तुम्हें सताएंगे क्योंकि तुम धरती के नहीं हो। John heard that. यूहन्ना ने इस बात को सुना, And in 1 John when he's writing letter, इसलिए जब पहले यूहन्ना में वो पत्र लिखता है, he said, you're not your own. His spirit he gave to you. आप अपने नहीं हो, उसने अपनी आत्मा में से आपको दिया है। You are heavenly. आप स्वर्गीय हो। Church, I want you to know this. कलीसिया, मैं चाहता हूँ इस बात को आप जानें। Don't let your problems tell you that you are earthly. अपनी समस्याओं को ये बताने मत दीजिए कि आप धरती के Oh, हैं। if I was heavenly, why are there these problems in my life? अगर मैं स्वर्गीय होता तो मेरे जीवन में समस्याएं क्यों हैं? Jesus was heavenly and yet there was no place for him to take birth. यीशु स्वर्गीय था, फिर भी उसके लिए जन्म लेने के लिए जगह नहीं थी। He was born in a manger. वो एक गौशाला में पैदा हुआ। Just because you are born in a manger doesn't mean you are not heavenly. आप गौशाला में पैदा हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्गीय नहीं हैं। Just because you don't have soldiers doesn't mean you are heavenly. आपके पास सैनिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्गीय नहीं हैं। Just because king is trying to kill you doesn't mean you are heavenly. आपको राजा मारना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्गीय You नहीं are हैं। heavenly because you are born of the Spirit of God. आप स्वर्गीय हैं क्योंकि आप आत्मा से जन्मे हैं। My church, I want you to know मेरी this. कलीसिया, मैं चाहता हूँ इस बात को जाने। Don't let your circumstances tell you you are earthly. अपनी समस्याओं को बताने मत दीजिए कि आप यहाँ के हैं। You are a heavenly being. आप स्वर्गीय हैं। You are a heavenly being. आप स्वर्गीय हैं। You are a heavenly आप being. स्वर्गीय हैं। Jesus said, I am heavenly. यीशु ने कहा मैं स्वर्ग का हूँ, And then he said to his disciples, you are और heavenly. उसने अपने चेलों को कहा तुम स्वर्ग के हो। Jesus said, I am not from the earth. उसने कहा मैं यहाँ का नहीं, And he धरती का said, now नहीं, you are not from the और तुम भी earth. संसार के नहीं हो। I've chosen you. मैंने तुमको चुन लिया Taken है, you out of the मैं earth. तुमको इन लोगों से You निकाल are लिया है। no longer ordinary. अब आप साधारण नहीं हो। Believe that in your इस heart. बात पे विश्वास कीजिए अपने Oh, हृदय में। pastor, I commit sin. पास्टर साहब, मैंने गलती की है। Jesus never commits sin. यीशु ने कभी गलती नहीं Listen, की। Jesus was not from heaven because he never committed sin. यीशु स्वर्ग का इसलिए नहीं था क्योंकि उसने पाप नहीं किया। Jesus was from heaven because he was born of the Spirit यीशु of स्वर्ग का God. इसलिए क्योंकि वो आत्मा से जन्मा है। Because you commit sin has nothing to do with your heavenly identity. आपके स्वर्गीय होने में आपका पाप का कोई संबंध You नहीं are है। born of the Spirit of God. That's why you're heavenly. आप आत्मा से जन्मे हैं, इसलिए आप स्वर्गीय हैं। My son Josh is not my son because he's studying in Amity. वो मेरा बेटा जॉश जो अमेठी में पढ़ता है, इसलिए वो मेरा बेटा नहीं My है। son Josh is not son because he does something. वो मेरा बेटा इसलिए नहीं कि उसने कुछ किया है, He is my son. वो मेरा बेटा है। My DNA is in him. मेरी संरचना उसमें है। That's what God looks at you and me. Like. ऐसे परमेश्वर आपको और मुझको देखते हैं। Brother, if this is true, if I am heavenly, why do I fall in sin? ब्रदर, मैं अगर स्वर्गीय हूं तो मैं क्यों बार बार गलतियां करता The हूं? answer is इसका जवाब है you fall because you don't know the truth. आप गिरते हैं क्योंकि आपको सत्य नहीं पता। If you know the truth will set you तुम free. सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So today I am telling you the truth. इसलिए मैं आज आपको एक सत्य बता रहा I हूं। am heavenly. आप स्वर्गीय हैं। Now when I understand I am heavenly, जब मैं इस बात को जानता हूं मैं स्वर्गीय हूं, I am more than a conqueror. मैं जैवन से बढ़कर हो जाता Why हूं। does Bible say I don't have to fight the battle? I am more than a conqueror. वचन कहता है मुझे लड़ने की जरूरत नहीं कि मैं जैवन से बढ़कर हूं, Because I am heavenly product. क्योंकि मैं स्वर्गीय हूं। Hey, listen. हे सुनिए, Why does angels serve the church? क्यों एंजल कलीसिया की सेवा करते हैं? उद्धार पाए हुए लोगों के लिए स्वर्गदूत सेवक के रूप में क्यों दिए गए हैं बाइबल के अनुसार? Amen. Because we are heavenly. क्योंकि हम स्वर्गीय हैं।